Hello. Hello. हाँ, कैन यू हियर मी? वहाँ पे उस पे भी सुन सकते हो? ओके, फाइन। सो मैं अपना इसका वॉल्यूम भी ठीक रख देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू। Shovik, can you hear me? Uh, thank you, Pradeep. Yes, I was wondering if you could hear me. Yes, thank you very much for confirming. अभी शुरू करते हैं। 2-3 मिनट में let other people join as well. I'll try to put it on my web page, as my Facebook page. I'm trying to see how it is done. Uh, Live किधर है? Trying to see how it is done. See all. Yes, I can see it now. Uh, Share, copy link. Okay, copy link. Let me share it in my place. And Shomik, when I share it on my Facebook page, can you share it with the other groups we are in? I'll just put it here on my page. Thank you. I'm on my page now. Shomik, just put it at the other places as well. Thank you for coming. We'll start in about 5 minutes. The topic is a very interesting topic about Kashmiri Hindus, the exodus and the way forward. So what I will do is I will go a little bit about the history of Kashmir and point out some important milestones as they were up to 1989-90. So that way you will get an up-to-date idea what happened in Kashmir. Thank you for confirming, Niranjan ji, and that you can hear me. That's good because otherwise I'll be talking to myself. It's not a good idea. I do talk to myself many times. So yeah, how I will start is a little bit of history, a little bit of what happened in Exodus, and the way forward. We'll keep it very simple. So I will cover a little bit of olden times, a little bit about 1947, what happened, then what happened a little bit about important milestones, then go on to 89-90, and then what happened after 1990 to the current stage. I'll start in 1 minute from now. You can text me if you want, if you can hear me properly and all those things. I'll be looking at the text now.
and I will speak in both English and Hindi, so that that's the natural way of speaking. My own friend, another Vivek Kola joined. We are 3 or 4 of us. Thanks, Arun. Yes, if you can hear me, perfect. Just 10 seconds will start. Thank you, everybody. Yeah, so thank you very much, Manushi ji, for inviting me over to such a website of yours, which is really a labor of your love, and all the great people have spoken here before me, and including you. So I've learned a lot from My India, My Glory page. So today is the time when we will be speaking about Kashmiri Hindu exodus and the way forward. It's a very unfortunate part of our history, which I'll be describing in detail. So as you all know, the Kashmir name comes from Kashyap Rishi, which was a rishi in Kashmir, and it means his lake. The Kashmir is full of lakes, so Kashmir is named after Rishi Kashyap. So we had there was a very important seat of Hinduism till about 14th century, though it had become Buddhist few centuries later and again became Hindu. It's a very due to the intervention of Shankaracharya ji, Adi Shankaracharya ji, who came from Kerala. And before that, there were a lot of Hindu kings, and there were a lot of important personalities. One of the famous kings was Lalita Dattya in about 8th century. He was very expansionist in nature. He reached up to Central Asia after conquering a good part of India. He conquered the present Afghanistan, went up to Central Asia. So the people who जो बोलते हैं कि हिंदू expansionist नहीं थे, he defeated the theory that we were expansionists, we did conquer areas way beyond his जो उसका area था, and went up to almost Central Asia, Turkey. His reign is very popular. He made the famous Martin Temple, which many of you would have. It is called the Acropolis of Kashmir, a huge, magnificent temple which was later destroyed by Sikandar, Sikandar Butshukun, not the Alexander. This temple was a huge structure on a very big plateau from where you could see the whole of Kashmir. It is still there. The ruins are still there. You would see it in some movies में देखोगे आप, and you will find it is a magnificent structure which in fact should be reconstructed like Acropolis in Athens to its old glory. So that was Lalita Dattya made a lot of great temples, and after that came a personality called Abhinav Gupta. He was in the 9th and 10th century. He was a Shakespeare of his time. I mean, even now he wrote how to. He used to write dramas. He used to write music, compose music. He was a very good scholar. He's very famous. You could read more about him. And he wrote one of his famous books where he basically says how to do the art of dramatization or acting. So he was that much very famous. His books are still available. Then later on, after 1 or 2 centuries, came Kalhana. His Raj Tarangni was a very famous book where he writes about the kings past and his present kings of Kashmir. This was the golden period of Kashmir. Then unfortunate incidents came to us in about 14th century when a Ladakhi king, he was a Buddhist called Rinchen, he came to Kashmir. He was defeated by the Kashmiri Hindu king, but as usual he was let off. After letting him off, he comes back and there is a truce, but then there truce as usual. What happened in Galwan, same thing happened to the Ramchandra king, and he was knifed and killed by this Rinchen in a tent. Foolishly believing that it was a truce and happiness and all that. So he takes over the reign,
and he goes. The history has it that he goes to the Brahmins of Kashmir that he wants to convert to Hinduism from his Buddhist faith, and as usual, our Brahmins say, no, 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 you cannot be converted. You have to be by born. You have to be. Somebody saying my volume is less. Is it okay? Volume? People are saying volume is very little, they can't hear. Can you hear me now? I'll talk a little louder. Okay. So he was not converted to Hinduism, and he got converted to, he want as a rebound, he converts himself to Islam. So he was the first ruler of Islam in Kashmir. Rinchan he converted himself to, and after that there are a few intrigues in the court, and somehow the Muslims take over the reign of whole of Kashmir. There's one last Hindu queen is called Kota Rani, and there's a lot of good book written by Rakesh Kolji about her. So she was the last Hindu princess of Kashmir, and after that, somebody is still saying the pitch is low. I don't know. It should be. Is it okay now? Is the volume okay? I think I should be audible now. I've kept myself at the highest. Thank you, thank you. So I'll try to raise my voice if you can hear me. So after that, when the Muslim rulers Sultanate comes in, one of the kings is called Sikandar Butshukun. Can you hear me now? Okay, thank you, Shonik. So the king is called Butshukun, Sikandar Butshukun. You can Wikipedia him. He was the most treacherous king we ever had. He destroyed so many temples in Kashmir, including Martand. Martand he took almost a year to destroy. And all the books which were in Martand were all destroyed by this Butshukun, along with his prime minister. His prime minister was one called Suha Bhatt. He was a Kashmiri Pandit, but later on converted to Islam. And he was a very treacherous prime minister he had. So this happens in about 14th century. They have complete control, and at the same time they are converting people by huge numbers of Kashmiri Pandits to Islam, and at sword point, and almost a huge number of Kashmiri Pandits were converted to Islam during that time. There was a little reprieve. His son was called Badshah, Buddshah. He was a better king. He was not very lethal to Hindus. He invited many Hindus back who had left Kashmir, and gave them good accommodation and good areas to live in. That was his son. But again, it goes back to when he dies. Again, there is a reign of terror, and only 11 houses. They say history has it. We had only 11 houses which were left unconverted, and rest all had either converted or they had left Kashmir. And then the whole thing. This goes on for about 100-200 years till Akbar comes on reign to throne to India. He captures Kashmir. And our last king is taken to exile by his troops. He's taken to rest of India somewhere. I think in Bihar or somewhere they were gone. So फिर ऐसा ही हुआ. तो ऐसे होते होते अकबर का रेन आया, मुगल्स का रेन आया. वो भी about 200 साल तक चला अकबर का रेन, जब तक औरंगजेब आया. उसमें भी काफ़ी सख्ती थी. सख्ती ये थी कि मतलब Hindu could not go to temple. He could not put a tilak. The thread could not be worn. They were very, very ruthless, as they normally are. Then after this came the Afghans. They were worst. Afghans तो ऐसे थे. उन्होंने तो वहाँ पे एक जगह बनाई थी, उसको मज़ार बोलते हैं, बट मज़ार. वो डल लेक के साइड पे है, रैनावरी साइड पे है, अभी भी है.
वहाँ पे वो कश्मीरी पंडित्स को डुबाते थे, अगर वो कन्वर्ट ना हो इस्लाम में तो उनको डुबाते थे वहाँ पे। वो भी मुझे एक्चुअली उस जगह का मालूम नहीं था, मुझे एक मुसलमान ने ही लिया, मेरा मुसलमान एक टीचर था सर्जरी का, उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एक बट मज़ार है जहाँ पे ये डुबाते हैं। तो इट इज़ ए हिस्टोरिकल फैक्ट विच मुस्लिम्स ऑल्सो नो हु गॉट कन्वर्टेड, किस जगह पे हमको डुबाते थे हमको इस्लाम कबूल करने में। थोड़ा सा रिप्रीव आया अफगान्स के बाद, जो सिख थे पंजाब में उनका रूल था, सिखिज्म का रूल वहाँ रहा। सिख आए तो उन्होंने थोड़ी सी रियायत हुई कश्मीरी पंडित्स पे, तो वी कुड गो टू टेम्पल्स and we could practice our faith in all honesty. After that, the kings, the British had a fight with the Sikhs, and ultimately, what happens? The British sell Kashmir for 75 lakh rupees to Dogra. Dogras basically जो kings थे वो राजपूत थे basically. Some they had gone from Rajasthan to that place many centuries back, so they were son of soils and they were very good fighters. So Gulab Singh and all take control of Kashmir. That was a good period for all Kashmiris, including Muslims. They were very nice rulers. One of their generals was called Zorawar Singh. You can read about him. Zorawar, like strength. He was the person who made the present map of Jammu and Kashmir. He annexed a lot of Ladakh, Gilgit, Baltistan, and even Tibet. जितना ये अक्साई चीन एरिया जो आप बोलते हो, ये सब उसने कॉन्कर किया था. He was a very ferocious जनरल फाइटिंग एट द फ्रंट विद हिज सोल्जर्स. तो वो एक एरिया है जम्मू के पास किश्तवाड़, वहाँ से पहाड़ों से चढ़ के वो लद्दाख जाता था. वहाँ पे ही यूज्ड टू फाइट एंड ही फॉट मेनी बैटल्स विद तिब्बतियंस एंड चाइनीज and got the Treaty of Chishul signed in 19th century, when the whole of Aksai Chin and Tibet and part of Tibet became part of Jammu and Kashmir. So Maharaja of Kashmir, जो ये डोगरास थे, they had their own rule up to Tibet, Aksai Chin, Gilgit, Baltistan, all taken by Zorawar Singh's Bahaduri. He was a very, very famous general India has produced, again proving that Hindus or Rajputs in that way were expansionist. To take over whole of Aksai Chin, Gilgit, Baltistan and Tibet was not easy. And minus temperature, he went up to Mansarovar. And while coming back, the guy froze in a fight. Oh, December May he died. He didn't have enough clothes. And many of his troops died and he died along with them. But not before signing all these treaties which became later part of India. So he is the man who joined Ladakh and the part of China to the state of Jammu and Kashmir. So the Dogras ruled Kashmir for 90 years till 1947, and the last king was Hari Singh. So they were all great rulers. Actually, they got a lot of education schools they opened in Kashmir. One of the schools they opened was popular. Many of the schools were called Jabri school. Jabri means by force. By force they used to ask these Muslims to go to school and get education. Otherwise, they were always going to madrasas. He said, no, till you don't get a better education, you cannot your job prospects and you cannot go to higher education. So one of the reforms he did was open all these schools in the valley for the Muslims to get educated, and also provided free food in those schools. So he was much, he was like a welfare state. So that's how he ruled Kashmir. So this happened, ये हुआ about 1947 तक. उसके बाद उसको आइडिया आया कि मैं हूँ यहाँ का महाराजा, मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना चाहूँगा. तो उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की एक बात करी इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी. वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन किया. बाद में धोखेबाजी तो पता चल जाएगी आपको. और इंडिया ने बोला कि हम सोचेंगे इसके बारे में. तो जिना का ये प्लान था, चलो स्टैंड स्टिल कर देते हैं, फिर अपनी फौज भेज के इनको हम नानी याद दिला देंगे. वही हुआ. सितंबर में जो नमक था, पूरा हमारा जो रास्ता है कश्मीर का, उस जमाने में ये आता था मुजफ्फराबाद से, फिर पाकिस्तान रावलपिंडी के थ्रू और लाहौर के थ्रू. वो रास्ता था बिकॉज वो आसान रास्ता था. तो दूसरा रास्ता जम्मू एंड कश्मीर के बीच में बानिहाल पहाड़ है, वो रास्ता मुगल रोड्स को बोलते थे, वो नॉर्मल रास्ता नहीं था. तो हमारा पोस्टल खाना पीना सब ये जेहलम वैली रोड बोलते थे उसको,
जो पाकिस्तान के थ्रू आता था। तो वहाँ पे पहले नमक बंद कर दिया इन्होंने, पोस्टल बंद कर दिया। तो सितंबर में ये ऐसा कांड हुआ, और अक्टूबर में उन्होंने फुल फ्लेज्ड एक इन्वेजन किया, और सो दैट दुनिया को ना पता चले कि हमारी आर्मी इन्वॉल्व है। सिविलियन क्लोथ्स में आर्मी और वहाँ के जो जो ये थे अपने कबाली, जो जिनको आजकल आप तालिबान बोल सकते हो, मुजाहिद बोल सकते हो, उनको पेशावर में जमा किया और उनको बोला भैया आप उनको बोला कि आप वहाँ जाओ, जो इतना लूट मार है आप कर लो और वो आपका रहेगा, वो माले गनीमत रहेगा। तो मुजफ्फराबाद तक पहुँचे, वहाँ पे उनकी जो महाराजा की जो फौज थी, उसके जो मुसलमान सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने पूरे हिंदू सोल्जर्स को मार दिया, रात को उनको गोली मार दी। तो दे ऑल्सो ज्वाइंड देम, and then when this happened, they were almost reaching towards Baramulla. Came he sends an SOS महाराजा to Indian government कि मुझे बचा लो क्योंकि यहाँ पे कत्लेआम हो जाएगा। And then Nehru, Patel and Mountbatten had a meeting and they decided चलो मान लेते हैं, but he has to sign an accession treaty that he has joined India subject to the will of people। वो माउंटबेटन साहब ने अपनी अंग्रेजी उंगली कर दी उसमें। सो ही साइंस इट सब्जेक्ट टू द विल ऑफ पीपल दैट आई हैव जॉइंड द इंडियन डोमिनियन। तो लड़ाई चली और उसमें अपने फौजी सिख रेजिमेंट वॉज सेंट। इट वॉज सेंट वेरी वेरी इन ए स्मॉल नंबर्स बिकॉज रास्ता नहीं था, एज आई टोल्ड यू, रास्ता पाकिस्तान से आता था। तो डेकोटा में आते थे। डेकोटा जो जहाज था उस जमाने का, DC-4 था शायद, उसमें सिर्फ 20 फौजी आ पाते थे एक ट्रिप में। तो वैसे कर करके बहुत टाइम लगा, तो एक कम से कम बटालियन बन गई। बटालियन होती है 800 से लेके 1000 तक, इंडियन बटालियन जो होती है वहाँ उतनी पहुंची। तो वहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और 7 दिसंबर को एक लड़ाई हुई, इसको बैटल ऑफ शाल्टेंग बोलते हैं। वो 4 माइल फ्रॉम श्रीनगर से हुई। वहाँ पे ज़बरदस्त जो ब्रिगेडियर सेन थे, कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, ही हैड अ वेरी वेरी फेरोशियस फाइट्स विद दिस कबालीज, किल्ड मोस्ट ऑफ देम, 300-400 मर गए, उनको भगाया, और वो तब श्रीनगर बचा। एंड वो भागते भागते दे रीच्ड उरी। उसके बाद वो रुक गया। एंड ही सेज देयर आर लॉट ऑफ वर्जन्स। एक तो बोलते हैं नेहरू ने उनको रुकवाया, कोई बोलता है उसके पास विंटर क्लोथ्स नहीं थे, वहाँ रुकना चाहता था और रुका। उसके बाद नेहरू वेंट टू UN टू कंप्लेन। दैट वाज 1947 दिसंबर जनवरी की बात है। लेकिन ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी डिड नॉट गिव अप। उन्होंने पूरा 1948 का जो साल था उसमें पूरी कोशिश की POK जिसको आप बोलते हैं लाने की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं मिलता बिकॉज वो बहुत पहाड़ हैं, रास्ता तो था नहीं, रास्ता इज वॉज थ्रू पाकिस्तान। और दे फॉट ह्यूज बैटल्स बट दे कुड नॉट। उसमें एक फेमस बैटल है, उसका नाम है जनरल थिमैया। He went to the Zojila Pass, अपने टैंक्स में गया। फर्स्ट टाइम टैंक्स were fought taken to 12,000 feet in the history of the warfare of the world। 12,000 फीट पे उसने टैंक्स लिए, वहां पे उसने इन पाकिस्तानियों को भगा दिया। उससे करगिल लद्दाख एरिया बच गया। करगिल और लद्दाख हमारे साइड आ गया था, वो उन्होंने ले लिया था। थिमैया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी से वो हमको वापस मिला। वो पाकिस्तान की वॉर डायरीज में भी उन्होंने लिखा है कि अगर थिमैया नहीं आता टैंक्स के साथ, हमने पूरा करगिल लद्दाख ले लिया होता अक्साई चिन के साथ। इट वॉज अ पर्सनल ब्रेवरी ऑफ ए वेरी ब्रेव आर्मी ऑफिसर। उसके बाद क्या होता है, तो जब ये सीज फायर लाइन आ जाती है, उसको सीज फायर लाइन बोलते थे 1972 तक, वो हो जाती है जी जनवरी 1949 में। तो वट एवर केम टू इंडिया वॉज इंडियाज एंड देन इट केम टू UN ने बोला आप प्लेबिसाइड करो। आप सबको मालूम है प्लेबिसाइड के 2-3 प्रिलिमिनरी रूल्स थे कि पाकिस्तान विल लीव होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन आर्मी विल लुक आफ्टर होल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द प्लेबिसाइड विल हैपन अंडर द गाइडेंस ऑफ UN बट विद इंडियन आर्मी बीइंग प्रेजेंट बिकॉज पाकिस्तान वॉज एन एग्रेसर। चोर था, चोर को तो निकलना था कश्मीर से। वो लॉजिक इंडिया ने UN को दिया था। पहले वो बोलते थे, पहले मानते नहीं थे, उन्होंने बोला यार ये तो एग्रेसर है यार, हमारे घर पे आया हुआ है, चोरी से आया हुआ है, लूटमार कर रहा है और ये आप इसको इक्वल हक दे रहे हो। समहाउ दे एग्रीड, दे सेड यस ओके पाकिस्तान हैज टू कंप्लीटली लीव। और उन्हें उस दिन से लेके अभी तक POK नहीं छोड़ा। जो वो रोते रहते हैं दुनिया में हर जगह कि इंडिया ने हमको धोखा दिया, धोखा पहले उनका है। वो निकले नहीं वहां से, वहीं बैठे रहे और फिर रोने लगे जी आप हमको प्लेबिसाइट नहीं देते हैं। देयर आर सम रूल्स व्हेन यू
एक कोर्ट ऑर्डर था एक किस्म का यूएन का, कोई भी कोर्ट ऑर्डर होता है इसकी तामील करनी होती है। अगर तामील नहीं करोगे बाद में रोओगे जी हमको जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इट डजंट वर्क। सो दैट इज हाउ प्लेबिसिट कभी हो नहीं पाया कश्मीर में, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने धोखेबाजी करी, जो यूएन ने उनको बोला करने को वो नहीं करा, और बोला नहीं जी हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एज यूजुअल उन्होंने बोला बस जी हम ऐसा कर लेंगे, मतलब जैसे कोई कोर्ट कचहरी लोकल दादागिरी में जी हम पूरा ले लेंगे, ऐसा चला नहीं। बिकॉज इंडियन आर्मी तब तक और भी स्ट्रांग हो गई थी एंड दे टेकन पोजिशंस एंड दे वर रेडी टू टेक ओवर द अदर साइड इफ द गो अहेड मिल जाता अपने गवर्नमेंट से। फिर 50s में देयर वाज अ गुड रूलर ऑफ कश्मीर, वो भी प्राइम मिनिस्टर था, बिकॉज देयर वाज कश्मीर का चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, वो भी 370 आर्टिकल का एक ड्रामा था। तो उस जमाने में बख्शी गुलाम अहमद थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, ही वाज अ नाइस मैन। उसने काफ़ी कुछ, अगर आप कश्मीर में जाओगे देखने के, सेक्रेटरीट हो या स्टेडियम हो या जॉब्स हो, सब उसी ने दिलवाए हैं, ये सब उसका खेल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी अच्छी दोस्ती थी, वॉज अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, नेशनलिस्टिक पर्सन। उस जमाने में कश्मीर में रेडियो पाकिस्तान कोई नहीं सुन सकता था, उसको जेल में डाल देता था, ये इतना स्ट्रिक्ट था। पाकिस्तान के झंडे क्या, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकता था, ही वॉज सो स्ट्रिक्ट, ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और उसी जमाने में शेख अब्दुल्ला को ऑलमोस्ट 20 साल के लिए अंदर किया गया, बिकॉज बोला गया कि भैया ये ही इज टॉकिंग अगेंस्ट द नेशन, एंड ही वॉज इंडिया, कभी दिल्ली में जाके बोलता था कि इंडिया के साथ हूँ, फिर हजरतबल में फ्राइडे को बोलता था नहीं जी मैं हमको जो पाकिस्तान के साथ जाना है। तो दैट सेसेशन में इसको अंदर कर दिया 20 साल के लिए, दैट वाज गुड थिंग। और नेहरू ने भी बोला कि मेरा दोस्त है लेकिन इसको अंदर जाना चाहिए। तो बख्शी गुलाम टाइम वाज अ वेरी गोल्डन पीरियड इवन फॉर कश्मीरी पंडित्स, लॉट ऑफ पीपल गॉट जॉब्स, ही वाज वेरी रेस्पेक्टफुल, मेरे डैडी को भी जानता था, he had a great memory, and डैडी वाज वेरी ऑनेस्ट फेलो। उनको डैडी को उन्हें बाहर भेजा, हंगरी भेजा, डैडी जर्मनी से आए थे सर्व करने के लिए, तो पावर स्टेशन बनवाए डैडी के थ्रू, डैडी बाहर जाके उनको डिज़ाइन करते थे यूरोपियंस के साथ, बिकॉज डैडी यूरोप में काम करे हुए थे, एंड ज़बरदस्त बनाए। उनके 10 या 20 साल, 10-15 साल उनकी उसकी was the age of those turbine generators of हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो अभी भी चल रहे हैं। कितने साल हो गए देखो, 60 साल हो गए होंगे, दे आर स्टिल वर्किंग इन मोहराम में, गांदरबल में जो बिजली बनती है वो टर्बाइन अभी भी चल रहे हैं, जो डैडी ने बाहर हंगरी और जर्मनी में डिज़ाइन किए थे। तो इस टाइप का बंदा था वो, कम्युनल नहीं था, ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। वो आई थिंक 63 तक चला। वो कामरान प्लान आया था बीच में, चमचागिरी का, नेहरू को एक कामरान ने बोला भैया सब चीफ मिनिस्टर को आप बोलो रिजाइन करो, और जो वापस आएगा उसको वापस लेंगे। प्लान ये था कि जो बाकियों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और इस प्लान से सब चीफ मिनिस्टर को बोला गया भैया जी आप रिजाइन करो, और आइडिया था कि किसी को वापस ना लिया जाए। उसमें बख्शी गुलाम अहमद भी पड़ गया, इसको नहीं करना था, ही वॉज नॉट सपोज टू डू इट। इसने बहादुरी में किया जी नेहरू मेरा दोस्त है। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज नॉट टेकन बैक, ही वॉज साइड लाइन। दैट वॉज द वर्स्ट पीरियड। उसके बाद जितने भी आए वो नेशनलिस्टिक नहीं थे, वो सब इंडिया का भी पैसा खाते थे, पाकिस्तान का पैसा भी खाते थे। वहाँ पे एक और चीफ मिनिस्टर बना था मीर कासिम, वो भी डैडी को जानता था। उसने बोला भैया, डैडी को बोलता था यहाँ 2 ही रूल चलते हैं, पावर या पाकिस्तान। जब हम पावर में होते इंडिया की बात करेंगे एज अ पर्सन, और जब अपोजिशन में रहेंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, दोनों साइड से हमको पैसा मिलता है। तो दैट वॉज द वे थिंग्स वेयर प्लान्ड इन कश्मीर। और दूसरा नाटक है, आपको बोलते हैं कि जी 1986 का इलेक्शन, 87 का इलेक्शन में चोरी हुई इसीलिए हम मिलिटेंट बने, वो सब बकवास है। कश्मीर में जितने भी इलेक्शन होते थे सब में धांधलेबाजी चलती थी, रिगिंग होती थी। रिगिंग इसलिए होती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जो लोकल लोग होते थे जो नेशनलिस्टिक मुसलमान थे, उनका ये कहना था कि जमात को बाहर रखने के लिए हमको रिगिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे एक फेमस डिविजनल कमिश्नर होता था, उसका नाम था खालिक। वो बोलता था, उसका एक फेमस हंसी वाला बोलता, मुझे बनाया मालिक ने और तुम्हें बनाया खालिक ने। वो क्या करता था, वो पूरे नकली वोट्स डालता था और जिसको जीतना होता उसको जिता देता था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब दिस इज द ट्रूथ। आपको लोग बोलेंगे नहीं जी वो हुआ ये हुआ, ऑल इलेक्शंस वेर रिग्ड इन कश्मीर ऑलवेज। ये आप
दिस इज इनसाइड स्टोरी मैं बोल रहा हूँ, ये 86-87 का ड्रामा जो बोलते हैं, ये आधे कश्मीरी जी ये हुआ, उससे जी हमारी ये हुआ, फिर जी हम पाकिस्तान गए, वहाँ पे जी हमको खाना खिलाया, फिर AK-47 दी, फिर हम लड़ाई करने लगे। वो ड्रामेबाजी जो इनकी वो टीवी पे रोज़ शाम को आते हैं रोने के लिए, वो सब झूठ है। तो फिर मीर कासिम भी काफ़ी नेशनलिस्टिक था, एंड 1975 तक रहा वो। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। वो हमको जानता था, डैडी को भी जानता था, वो फ़ोन भी करता था कभी, बिजली नहीं जात कैसे करना है कोल साहब। डैडी का वो पुराना दोस्त था, वो जब बख्शी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो पावर मिनिस्टर था, वो तब से जानता था डैडी को कि ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ऑफिसर, बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर था और काफ़ी जानकारी काफ़ी थी। तो ही हैड टू रिज़ाइन। इंदिरा गांधी को, कांग्रेस का बंदा था बाद में, तो इंदिरा गांधी ने इसको बोला तुम रिज़ाइन करो, शेख साहब को हम जेल से छोड़ देते हैं और वो हमारा अकॉर्ड करेगा। एज यूजुअल शेख ने बोला जी दिल्ली में हाँ जी इंडिया का हो गया, और कश्मीर में आके फिर हजरतौल में बोला नहीं जी अभी तो ये कैसे हो सकता है, ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो यही हूँ। अगेन शेख स्टार्टेड डूइंग द ड्रामा। 75 था वो, एंड देन ही आफ्टर आई थिंक 4-5 years in 1980-81 ही डाइड। उसके फिर वही जो लड़ाई होती है मुगलों में, औरंगजेब ने माँ इसको कर दिया उसको कर दिया, यहाँ भी वही हुआ। उसका सन इन लॉ बन गया, गुल शाह बन गया चीफ मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला से लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी भी आई, उसको भी पता नहीं एक पार्क में बदतमीजी से 1000 लोगों ने अपने पैंट खोल के उसको दिखा दिया। वो फारूक अब्दुल्ला ने स्टेज मैनेज किया था वो शो, इंदिरा गांधी को ऐसा कर दिया। इंदिरा गांधी वॉज सेव्ड बाय इंडियन आर्मी अगेन। 1000 लोग देखो पूरा पजामा खोल के उसको दिखा रहे भैया हम ये कश्मीरी है, ऐसा हुआ था। तो दिस वॉज टोल्ड टू मी, सबको मालूम था, ये बात छुपाई गई थी इंडियन से। फिर एक बारी फारूक साहब को भी हम जानते हैं, उसने मुझे बोला या मैं नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलने गई इंदिरा गांधी से, उसने बोला मेरे अपने फतेहदार साहब उनके सेक्रेटरी थे कि ये कपड़े पहन के आया दिल्ली में, ये नंगा ही बैठा है बाहर। तो ऐसा भी होता है। तो ये पॉलिटिक्स में दीज थिंग्स गो ऑन। और उन दिनों क्या हो रहा था कि 60s में शुरू हो गया था, IB का प्लेन आता था कश्मीर, वो पैसे लेके आता, रिश्वत लेके आता था। वो दोनों को, चीफ मिनिस्टर को भी रिश्वत जाती थी और जो ये प्रो पाकिस्तानी होते थे उनको भी रिश्वत जाती थी। तो 80s में भी वो सिलसिला चलता रहा। बट 80s में क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब और 1-2 लोग और गुस्से में आए। उन्होंने पुलिस की जो भर्ती थी ना उसमें सब जमाती डाल दिए, जमाती इस्लामी के लोग डाल दिए, जो कटर थे, कटर से कटर लोगों को डाल दिया, उनको रिक्रूट कराया। और JNK पुलिस को इसीलिए आर्मी वाले कभी भरोसा ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो उन्हीं के लोग हैं। इट इज़ एज गुड एज टेलिंग द टेररिस्ट हम क्या कर रहे हैं, यू कैन नॉट बिलीव देम। तो फिर कुछ और नाटक चला। जगमोहन जी का पहला टेन्योर आया, वो गवर्नर रूल था, बहुत पॉपुलर थे। जब जगमोहन इन हिज फर्स्ट इनिंग्स वाज, उसको तो ऐसा बोलते थे ऐसा राजा ही नहीं, मतलब ये तो हमारा राजा है, हमारा दामाद है, गाने गा रहे थे उसके लिए, बिकॉज उसने ज़बरदस्त, वो रास्ते जो बीबी कश्मीर में है श्रीनगर में, वो उसी ने बनाए हैं। ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्टर लाए, उनसे बनवाए, पार्कें खोली, सिटी फॉरेस्ट बनाया, बहुत चीज़ें करी उसने गवर्नर। ही वॉज लॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट रूलर्स ऑफ कश्मीर। इसको बडशाह बोलते थे, जब बडशाह था ना वो पुराना जिसने बहुत काम किए थे, इसको भी बडशाह बोलते थे। बड़ा खुश हुए थे पब्लिक उससे। तो फिर फारूकुल्लाह साहब गुस्से में थे और बाकी कश्मीर उन्होंने अपने पहला बैच भेज दिया JKLF का ट्रेनिंग करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर। फिर 88-89 के वक्त जो कश्मीरी मुस्लिम है ना, वो भी यू कुड सी इन देयर आइज दे आर नॉट सिंसियर, कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, कुछ साजिश चल रही है। यू कुड नो एज अ कश्मीरी हिंदू दैट थिंग्स आर नॉट सेम, कुछ ना कुछ हो रहा है। उन दिनों वो हमारी आंखों में आंखें देख के बात नहीं करते थे। जो दोस्त थे वो भी बोलते थे क्या नहीं नया मकान मत बनाओ, ये वो। सब्जी वाला भी आंखों में आंखें देख के बात नहीं करता था। was something brewing up in their masjids or something, and lo behold 89 की याद होगी आपको, दिसंबर में जब वो होम मिनिस्टर हमारे मुफ्ती सैयद थे, वो भी उनकी बेटी को बोलते हैं ड्रामा किया गया, उसको किडनैप किया गया, अपने लोगों ने किया, वो ड्रामा चलता रहा। अल्टीमेटली उस ड्रामा का क्या हुआ, दे बिकेम एम्बोल्डन। कश्मीर के जो ये मिलिटेंट्स थे और पब्लिक थी, बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने जमीन पे ला लिया, एंड कश्मीर की आज़ादी तो राउंड द कॉर्नर है। तो दैट वीक जम्प टू जनवरी में दे वेयर थिंकिंग आज़ादी तो यार 3 दिन में आ जाएगी। सो इनको लगा कि आज़ादी की रुकावट कौन करने वाले हैं, कश्मीरी हिंदू। Kashmiri Pandit is the most patriotic person in Jammu and Kashmir, along with Dogras and Ladakhis. I should say all three are very patriotic in their own way. We were in the line of fire. इन्होंने बोला इनको तो निकालना पड़ेगा, इनको धमकाना पड़ेगा, इनको कुछ को मारना पड़ेगा। मारना शुरू हो गया था सितंबर से। इन्होंने टकलाल टिपलू को, एक हिंदू लीडर थे, वेरी हेल्पफुल टू मुस्लिम्स, उसको मार दिया। RSS के थे,
आरएसएस जो है हिंदू नहीं होते हैं, वो नेशनलिस्टिक होते हैं। अगर आपको किसी को डाउट है, वो मुसलमानों को भी हेल्प करते थे, वेरी वेरी हेल्पफुल गाय। इनके केसेस लेते थे कोर्ट में। ही वॉज अ वेरी सेक्युलर काइंड ऑफ नेशनलिस्टिक पर्सन। उसको मार दिया। तो जनवरी में दे स्टार्टेड गोइंग टू मॉस्क एंड वहाँ से उन्होंने टेप शुरू कर दिए जी, काफिरों को निकालो, काफिरों को निकालो। और सरदारों को नहीं निकाला। एक जालसाजी करते हैं जी, सरदार रहे आप क्यों भाग गए। सरदार इसलिए रहे बिकॉज वो आईएसआई का डिक्टेट था कि ये तो अपने सरदार हैं, इनको हमने खालिस्तानी बनाया है पंजाब में, इनको तंग मत करो। उन दोनों एक नारा भी लगा था। एक नारा मीन्स एक स्लोगन था, हिंदू सिख भाई भाई, ये नो मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहाँ से आई। दिस वॉज देयर स्लोगन of these Sikhs and Musalman. So they did not treat them badly because ISI का dictate था. Everything was dictated by ISI under the Operation Topaz बोलते हैं इसको, टोपैक बोलते हैं in a technical language. The whole thing, how to take over Kashmir and remove the Pandits and take over the whole thing. Army को धोखा देके we will take over this whole thing. So it all culminated on 19th of January. जिस रात को इन्होंने इतना गड़बड़ किया, एंड दे ऑलमोस्ट वर रेडी टू किल ऑल ऑफ अस। आवर वीमेन वर रेडी विद केरोसिन एंड टू बर्न देमसेल्व अप। कितनी अपनी कहानियां होंगी। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। इज वन बुक आई रेड, एक सेकेंड, A long dream of hope, A long dream of home। ये इस सिद्धार्थ गीवू की ये किताब है। इसमें ऑलमोस्ट 30 कहानियां हैं उस रात पे हुआ क्या। एंड लॉट ऑफ अदर स्टोरीज हैव कम ऑन द उस रात को। अलग अलग हिंदू लड़के लड़कियों ने लिखी हैं, आधे फेसबुक पे भी है, कि कितने डरावना रात था वो। पीपल वर दे वर ऑलमोस्ट टू बी किल्ड एंड रेप्ड इतने, एंड नोबडी केम टू अवर हेल्प। आपको ये पता होगा विंटर में अवर जो कैपिटल है इट गोज टू जम्मू, सो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन जम्मू। तो श्रीनगर में स्केल्टन रखते हैं, तो पुलिस वॉज इन देयर हैंड्स, पुलिस वॉज लुकिंग द अदर वे। आर्मी वाले कह रहे थे कि जी हमको ऑर्डर नहीं है। आर्मी वालों को भी फोन किया, एक हमारे टिक्कू साहब हैं कर्नल, उन्होंने फोन किया, बोलते जी हमको ऑर्डर नहीं है। तो ऐसा में वी वर लेफ्ट टू नोवेयर। एंड आपको, और जगमोहन बिकेम द गवर्नर एंड नाइट बिफोर 18th को उनको गवर्नर बनाया गया दिल्ली से। और ये दूसरे जो अपने ये जो वहाँ के लोकल हैं वो भी बदमाशी करते हैं जी, जगमोहन ने इनको भगाया। जगमोहन became governor on the same day almost when this thing happened। वो क्या, वो दिल्ली में उसने कोई प्लान बनाया था कि हमको भगाने का। ऑल नॉनसेंस, ऑल लाइज, सच बोलते नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जनवरी के बाद बहुत लोग भागे, दे जो कुछ मिला, बसें मिली, ट्रक मिले, टैक्सियां मिली, दे रैन टू जम्मू। और जम्मू में वहाँ पे उन्होंने कुछ डेजिग्नेटेड कैंप्स बनाए थे, गवर्नर ने ही, जगती में था और अलग जगहों पे, जहाँ पे कश्मीरी पंडित टेंट्स में, नगरोटा में था, टेंट्स में रहे। और टेंट्स में इन ए विंटर, जम्मू का विंटर भी हार्श होता है, इट इज़ नॉट लाइक साउथ ऑफ फ्रांस। वहाँ पे भी काफ़ी लोग ठंड में मरे, बाद में समर में स्नेक बाइट से मरे। और ये किस्सा चलता रहा। फरवरी में भी उन्होंने काफ़ी कश्मीरी पंडित को मारा। एंड देन पीपल हैड टू लीव एन मास। सो उसके बाद द स्टोरी बिकम्स मच मोर becomes much more brutal for us Kashmiri Hindus को। जब हम पहुंचे जम्मू, आधे लोग दिल्ली भागे, there is not much help, there is no some people are helping, and गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ टेंट्स दिए थे। हम हमारे मकान कितने बड़े थे, उनके बाद में टेंट में रहना, एक टेंट में 6 फैमिलीज रहती थी। तो इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। टू टेक द स्टोरी लिटिल अहेड, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो कैसे मिलते, हमको पता भी नहीं था क्या हो रहा है हमारे साथ। तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में कॉफ़ी होम है, अभी भी है वो। मैं अभी जाता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ कि जस्ट टू पुरानी यादें पड़ती हैं। वहाँ पे कश्मीरी पंडित फैमिलीज बैठती थी दिन भर अलग टेबलों पे, और एक दूसरे को अपनी स्टोरीज और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है पता चलता था। दैट वाज आवर व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप। हमारा वो कॉफ़ी होम था दिल्ली में, जो वो कनॉट प्लेस में है, बाबा खड़े सिंह मार्ग पे है उसका है, बट आई नो वेयर, मुझे अभी भी याद है, मैं जाया करता था वहाँ पे। और उन दौरान क्या हुआ, मैं बॉम्बे चला गया और हमारी मम्मी डैडी भी गए। वहाँ पे एक अच्छी बात हुई। स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, मैंने फेसबुक पे लिखी है। किसी ने हमको बोला कि अब बाला साहब से मिलो। मैंने बोला बाला साहब तो जानते नहीं अपने को। तो मैंने बोला नहीं जाएंगे। तो मम्मी ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, चले जाएंगे।
तो गए तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा वो बैंड्रा ईस्ट में रहते हैं, उसको आर्टिस्ट कॉलोनी बोलते हैं, कला मंदिर या कला ऐसा कुछ नाम है उस कॉलोनी का। वो बिकॉज ही वॉज एन आर्टिस्ट कार्टूनिस्ट हिमसेल्फ, तो उसको गवर्नमेंट कोटा की तरफ से मिली थी, एक मकान मिला था वहाँ पे, मकान बनाया था उन्होंने। तो हमने एक चिट भेजा, कोल फैमिली फ्रॉम कश्मीर, तो दूर भेजा उसका, एक जैसे दिल्ली में होता है वो नेबरहुड वॉच, वहाँ पे गेट लगा था। तो एक पुलिस वाले ने उनको अंदर भेजा होगा, तो आफ्टर मे बी 15-20 मिनट के बाद आया कि जी आप लोग 3 चले जाओ। बड़ी लाइन क्यों थी बाकी लोगों की, तो हमको बुलाया, मम्मी डैडी और मैं गए अंदर। तो एक कमरा, छोटे कमरे में लिया, वहाँ पे लोग थे। वो 5-10 मिनट के बाद आए तो बात करी उनसे। उन्होंने बोला देखो मेरे एक फ्रेंड है अशोक पंडित, उनके थ्रू में काफ़ी राइस, ब्लैंकेट और चीज़ें बेचता हूँ। कैसे बेचता हूँ बोलता है, यहाँ पे सिक्स आते हैं ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ साइन कोलीबड़ा में, उनकी ट्रकें खाली जाती हैं, तो मैं उनके थ्रू दिमाग लगा कि मैं कपड़े, कंबल, ये वो चीज़ें और गेहूँ नहीं, राइस, दाल बेचता हूँ। तो उनको 6 ट्रांसपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमको जालंधर तो जाना ही है, थोड़ा सा आगे चले जाइए, वहाँ पे जम्मू में इनको दे दीजिए प्लीज़, ये मेरे अपने आदमी हैं। तो डैडी ने उनको बोला, मम्मी भी वहीं थी, मेरी मम्मी एजुकेशनिस्ट हैं, डैडी इंजीनियर हैं। डैडी ने बोला देखो बाला साहब, जो कर रहे हो भगवान ने आपको भेजा है अच्छा काम करने के लिए, मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम 100% लिटरेट हैं, इन दिनों बड़ी बुरी हालत में हैं 3 साल से, 1992 की बात है दिसंबर। हमको ना कुछ एजुकेशन में अगर आपकी तरफ से कुछ एक रिजर्वेशन मिल जाती, तो हमारे जो बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, ये बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इनका नो बॉडी कैन स्टॉप देम, ऐसा वर्ड भी यूज़ किया। हिंदी इंग्लिश ही बोलते थे दोनों, ऐसी बात का, वो भी वैसी बात करते थे, हिंदी इंग्लिश का मिक्स करते थे। तो बोला ये छोटी बात है कोल साहब। तो मेरे राइट हैंड मैन मनोहर जोशी जी हैं, वो कोहिनूर एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं, काफ़ी उनके कॉलेज स्कूल हैं, उनकी जानकारी बहुत है महाराष्ट्र में इन दिस एजुकेशन फील्ड, आप उनसे मिलिए। तो उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हम 2-3 घंटे के बाद उसके बाद गए। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने बोला कोल साहब, मैं आपके लिए जो मैं उनका हनुमान हूँ बाला साहब के लिए। बाला साहब ने जो आपको बोला है मैं उससे ज़्यादा ही करूँगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने जितने भी हिंदुओं से मिला जो इन पावर, नो बॉडी हैज़ कम क्लोज टू बाला साहेब हृदय। वेरी नाइस पर्सन, बहुत दिल के अच्छे। उन्होंने इतने अच्छे हैं कि जब हम छोटे कमरे में बैठे थे, उनका एक इंटरकॉम था, इंटरकॉम से उन्होंने अपनी मातुश्री, अपनी मैडम को बुलाया कि कश्मीरी हिंदू आए हैं एज रिफ्यूजीज, काइंडली ट्रीट देम। तो उसने एक थाली में दिया और बर्फ़ी ला के हमारी आरती उतारी उनकी मिसेज ने, अभी भी मुझे याद है, भूल नहीं सकता हूँ। टीका लगाया एंड शी वॉज सो, वी वर अननोन, हम जानते नहीं थे बाला साहब को। मेरे को कोई, मैं तो ऐसे ही बोला था नहीं जाएंगे यार, क्या फ़ायदा है वहाँ जाने का। बट ही बिकेम सच ए लवली पर्सन एंड ही बिकेम ए फ्रेंड। वो मुझे कभी रात को फ़ोन करते थे। मेरा एक एग्ज़ाम था बॉम्बे में MS सर्जरी का, ही विश्ड मी, विवेक एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट यू, ये करके। फिर एक बार उन्होंने बोला मुझे कुछ तुम खिलाओ, तो मैंने मम्मी से एक बार उनको ना मटन यखनी, वो दही में बनती, वो बना के दी थी। तो उन्होंने फ़ोन किया, पूरे टिफ़िन कैरियर लिया था शाम को, कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ही वॉज सच ए डाउन टू अर्थ। ऐसे कहाँ मिलेंगे आपको, ऐसे लीडर होते नहीं हैं, सब जालसाज होते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि बहुत कश्मीरी पंडित्स को रिजर्वेशन मिली, बहुतों ने इसका फ़ायदा उठाया, अच्छा हुआ, इंजीनियरिंग करी, MBA की है, और दुनिया में हर जगह पहुंचे हुए हैं। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर माइग्रेशन। कि आप देखो कश्मीर में मेडिसिन में हमारी, मैंने वो बोलना भूल गया, हमारे वी यूज्ड टू कम स्टेट में, वी वर ऑलवेज टॉपर्स। और टॉपर होने के बावजूद भी हमको प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता था कश्मीर में। अगर 120 सीटें हो मेडिसिन में, 5 या 10 मिलती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 200 सीट थी, उसमें 10 मिलती थी, जस्ट टू क्रिएट टू शो अस डाउन कि ये पैट्रियोटिक लोग हैं, इनको हम नानी याद दिला देंगे, हमसे ऐसा टक्कर लेते हैं। तो देखो अब उस मतलब एज अपोज टू दैट, सो मेनी सीट्स ओपन थ्रू बाला साहेब, वी वर लेस कैंडिडेट्स देन द सीट्स। देन फिर क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आइडिया है, उन्होंने भी HRD के तरफ से, आई थिंक भट्ट साहब कोई थे, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, ही इज रिसेंटली एक्सपायर्ड, ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग इन HRD। गुजरात गवर्नमेंट ने किया, सो दीज गवर्नमेंट्स, MP ने किया, सो दीज 4-5 गवर्नमेंट्स डिड हेल्प कश्मीरी पंडित अ लॉट।
एज अपोज टू दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब से लेके अब तक हैव नॉट डन ए सिंगल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। इनको हुआ क्या बेचारों को, किन्होंने इनको मारा, उनको जस्टिस मिला क्या, जो इनके जिन्होंने इनको मारा है कि वो अभी भी जिंदा हैं, उनको उनको यू नो दे शुड फेस जस्टिस, कुछ भी नहीं हो रहा है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट, यू नो पीपल आउट ऑफ देयर वे हैव हेल्प्ड अस, कॉमन इंडियंस, बाला साहब जैसे लोग, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं आया। एंड अवर जो हमारे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने हमको मारा, वो अभी भी कश्मीर में खुलेआम चल रहे हैं। तो देयर टिल यू नो अब आप बोलोगे करना क्या चाहिए, जब तक ये ट्रूथ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन ना बैठे जिसमें इन लोगों को पकड़ा ना जाए जिन्होंने हमको, हमारे कश्मीरी पंडित को मर्डर किए हुए, दे आर नॉट यू नो दे डोंट फेस जस्टिस, एंड देन द सेम कमीशन शुड कम अप विद प्लान्स हाउ टू रिहेबिलिटेट कश्मीरी पंडित्स इन देयर ओन स्टेट। कभी कभी आप देखोगे जी क्लस्टर कॉलोनीज बनाएंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे, दिस ऑल नॉनसेंसिकल वेज, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाउ कैन यू हैव क्लस्टर कॉलोनीज अमंग द रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन एंड स्टिल सर्वाइव? यू कैन नॉट। फिर बोलते हैं जी बीच में जहां ये पहले रहते थे वहीं रहेंगे, वो सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलते हैं, सोचते नहीं है कि आपको जहां पे जहादी है उन्हीं में वापस डाल रहे हैं। इट इज लाइक टेलिंग ज्यूज टू गो बैक टू जर्मनी, और यू नो जो ये हैं अपने आईएसएस में बोल रहे हैं जी बाकी जो उन्होंने मारा हुआ है जो आप उनके साथ ही रहो। दिस इज ऑल स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग, यू नो, टिल यू डोंट आस्क कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने सफर किया है, उनको बुला के उनसे पूछा जाए क्या करे। योर ट्रूथ एंड यू नो ट्रूथ इंक्वायरी कमीशन ही ये कर पाएगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बगैर ये चीजें नहीं हो पाएंगी, दिस विल बी ऑल एडहॉक। ये एक आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं जी आपको 27 ईयर्स हो गए, अब तो केस बहुत पुराना है। ये नहीं सोचते हैं कि यार सरदारों का जो सिख विक्टिम्स का केस 84 के रॉयट्स का अभी भी चलता है। सो देयर इज लॉट ऑफ दिस दांधलेबाजी एट कोर्ट लेवल ऑल्सो, दे डू नॉट गिव यू जस्टिस, लटकाते रहते हैं। तो ओनली गुड यू नो 85 में नहीं सॉरी 1995 में इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला गया कि इनको ऑलमोस्ट जेनोसाइड किया गया, दे वर विक्टिम्स ऑफ नियर जेनोसाइड, नियर यूज किया, पूरा जेनोसाइड नहीं बोला, बट दैट इज ऑल्सो a hint to the government of that day or even present day that a commission of inquiry has to sit. It has to deliver what happened to them, who were the perpetrators, they should face justice, and what else should be done. अब मुझसे अगर पूछोगे क्या किया जाए, अभी 4-5 साल पहले जब 370 रिवोक नहीं हुआ था, मैंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा था, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। मैंने बोला देखो अपने करगिल में शियाज को हिल काउंसिल दी है और बुद्धिस्ट को लद्दाख में बुद्धिस्ट हिल काउंसिल दी है एज ए इंडिपेंडेंट क्वाजी इंडिपेंडेंट ग्रुप। कश्मीरी पंडित्स की भी एक काउंसिल होनी चाहिए जो एक एरिया डिजिग्नेट किया जाए, वहां पे दी जाए। अब 370 चला गया है, व्हाट इज पॉसिबल, कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना ही चाहिए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, एंड द कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी टोल्ड दैट वी नीड ए स्पेशल डिजिग्नेटेड एरिया। जैसे मार्टंड हमारा टेम्पल है प्राचीन ऑन द वे टू पहलगाम, दैट एरिया कैन बी मेड इनटू ए सिटी लाइक यू नो सिंगापुर, लंदन टाइप बड़ी सिटी बन सकती है जहाँ पे पैट्रियोटिक लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कश्मीरी हिंदुओं को ही रखो, पैट्रियोटिक गोरखास है जिनको अभी तक ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है, तो जिनको आप डोमिसाइल दे रहे हो वहाँ पे उनको रखो, सो दैट इज अ बिग एरिया वेयर दे कैन सेटल एंड हैव देयर ओन कल्चर। एक टेम्पल भी होगा और एक दो और भी पुराने वहाँ प्राचीन टेम्पल है हमारे फेमस जो अभी भी हैं, बिजबिहारा के पास है, एंड यू नो दीज टेम्पल्स कैन बी प्रोटेक्टेड एंड दे विल बी अवर यू नो फ्यूचर। अब आप बोलेंगे फिर नौकरी के जरिए भी आ जाएंगे, वी आर सो पैट्रियोटिक, अब हम वी आर नॉट वेरी यंग, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं दे कैन मेक दिस सिटी अप, वी कैन हैव यूनिवर्सिटी देयर, वी कैन हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देयर, वी कैन हैव सो मेनी थिंग्स, बिकॉज हमारा माइंड जो है बड़ा फर्टाइल है, हम सोचते रहते हैं कि आगे कैसे बढ़े। एजुकेशन जैसे मैंने कहा, हमने बाला साहब को भी वही बोला कि 100% लिटरेट हम लोग हैं, तो हमको आप एजुकेशन वहाँ पे वी कैन मेक इट ए फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ द ओनली होप। ये जो लोग बोलते हैं जी आप क्लस्टर में रहो फिर उनके साथ रहो, वो होने वाला नहीं है। वहाँ पे एक बार ही आपको मारा गया है, बाल बचे हुए हैं कुछ लोग, फिर उसी जगह पे आप डाल रहे हो, दिस इज हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। So this is what I think should happen, and special designated area where patriotic people of India जिनको डोमिसाइल दे रहे हैं वहाँ रह सकते हैं,
वही एक फ्यूचर है. अदरवाइज लिविंग इन क्लस्टर, दिस आर ऑल हाफ हार्टेड मेजर्स विच वोंट bear any fruit. और I want to end on this and I will take the questions now. मैं questions देखता हूँ. कोथरू जी बोलते हैं पहलगाम टाइप ऑफ थिंग विच यू हैव सेड इज अ वंडरफुल आइडिया. डेफिनेटली दैट एरिया जो है वो लेदर वैली का, वो काफ़ी थिनली पॉपुलेटेड है. उसमें से काफ़ी लोगों को निकाला भी नहीं जाएगा, वो वहाँ रहेंगे. गुजर बकरवाल रहते हैं, दे आर वेरी पैट्रियोटिक इंडियंस. वो हिंदू नहीं है, मुसलमान होते हैं, बट वेरी पैट्रियोटिक. वो अपनी वो बेचारे वहाँ मशकरारी वो चीज़ बना रहे होते हैं, उनके साथ भी मज़ा आता है बात करने में. लाल लाल मूछें होती हैं उनकी, मेहंदी हर जगह लगाई होती है. दे आर नाइस पीपल. तो वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स. मुस्लिम्स भी रहे वहाँ पे, दे आर लॉट ऑफ पैट्रियोटिक मुस्लिम्स रियासत के, अच्छे होते हैं, तो वो भी रह सकते हैं. गुड पॉइंट. बट पंडित और हिंदू इज एक और पनून कश्मीर इज पनून कश्मीर का देखो, मैंने मैप लेटली नहीं देखा है. इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक. देखो आप अगर आप डिमांड करोगे पनून कश्मीर चाहिए, बट देयर शुड बी सम वे आउट. यू नो, वी हैज़ टू इंटरेक्ट क्यों नहीं करते हैं? यू नो, पन्नू कश्मीर की भी गलती नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, दे फील दैट हिंदूज आर वीक, दे डोंट हैव अ वॉइस. तो रेस्ट ऑफ हिंदूज ऑल्सो सफर द सेम प्रॉब्लम. ऑफ वेस्ट बंगाल के हिंदू लो या केरला के हिंदू लो या कहीं के भी हिंदू लो, हिंदू की पुछवाई नहीं होती है, बिकॉज हिंदू का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है. हिंदुज़म डोंट हैव, जैसे इस्लाम में होता है, क्रिश्चियनिटी में है, सरदारों में अकाल तख्त है. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच कैन टेक गवर्नमेंट ऑफ द डे और ओल्ड गवर्नमेंट्स टू टास्क. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद हिंदुइज्म. वो उसको हम थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. वी विल गेट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू हिंदुइज्म इन द नेक्स्ट 6 months और सो. दैट इज द प्रॉब्लम. यू नो, पनून कश्मीर वाले सोचते होंगे हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है. इट इज बिकॉज देयर आइडिया मे बी फर्टाइल, विच मे बी गुड, विच मे बी ग्रेट, बट देयर इज नो अदर बॉडी सपोर्टिंग देम. बिकॉज हिंदूज की जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ हिंदूज अप एंड डाउन द कंट्री, उसका फायदा उठाती है गवर्नमेंट ऑफ द डे. प्रेजेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट बोलती है जुड़े नहीं, कौन पूछेगा. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद व्हाई दीज यू नो आइडियाज विच आर वेरी ओल्ड आइडिया. पनून कश्मीर 1991 में शायद वो मार्गदर्शन आया था, 2 years after the exodus, but it's not taken on seriously because there is no one else to support it. That is the reason. The idea is good, but there has to be a huge body to support it. That is what will happen. Ultimately जो मार्टन का एरिया है उसको बनाना पड़ेगा एक किस्म का सोन कश्मीर, पनून कश्मीर, सारियोहंद कश्मीर और whatever कश्मीर. So that will be a good area which you can even have an airport out there, and it's very close to Jawahar Tunnel, so the people can come by train and they can even have an airport. It's a big area. It's not a small area. From Pahalgam to Martin is a very big area. Look, thank you, Dr. Saab. Wasn't Tibet also accepted to India along? हाँ, जो अरुण जी ने बोला तिब्बत पार्ट था, तिब्बत का एक ह्यूज पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का. इसलिए भी था बिकॉज जो कश्मीरी जो हमारे श्रीनगर के जो पश्मीना वीवर्स है ना, पश्मीना का सोर्स तिब्बत और शातूस का तो तिब्बत से आता था. वो उनके उसमें था ट्रीटरी में कि कितना शातूस और कितना पश्मीना आप दोगे हमको, तिब्बत वालों को बोला गया था जोरावर सिंह ने. सो ऑल दीज थिंग्स, रॉ मटेरियल जो पश्मीने का है, पश्मीना कश्मीर में नहीं होता है. एक पूरा जो वूल है वो लद्दाख, अक्साई चिन और तिब्बत से आता है. तो दैट इज अ सोर्स ऑफ पश्मीना वूल. कश्मीर में इसको फाइन किया, इसको शॉल में बनाया जाता है बाय द लूम्स. स्पेशल लूम्स होती हैं, कारीगर होते हैं वहाँ पे. तो आता माल तिब्बत से ही है. उस जमाने में तिब्बत तो हमारा ही एरिया था. पुराने जो नोट हैं महाराजा के, उसमें तिब्बत महाराजा ऑफ तिब्बत भी है बड़ा बड़ा लिख के. तिब्बत इज पार्ट ऑफ हिज किंगडम. ऑल टेम्पल लैंड शुड बी रिट्रीव्ड. यू नो, ये टेम्पल का जो चक्कर है ना, ये मेरा एक ही चीज़ बताऊंगा. टेम्पल तब तक रहेंगे जब तक डिवोटीज रहेंगे. वहाँ डिवोटीज ही नहीं है, खाली टेम्पल को लेके हम क्या करेंगे? टिल द डिवोटीज डोंट गो टू कश्मीर, द टेम्पल का लेना या जाना या ये करना, इट डजंट रियली मैटर. यू नो, एवरी टेम्पल नीड्स अ डिवोटी. डिवोटी फर्स्ट, टेम्पल लेटर. टेम्पल तभी साफ सुथरे रहेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं होगी, जब वहाँ पे लोग उनको पूजा करने आएंगे. अभी पूजा करने वाले कोई है नहीं. आधी जगहों पे मुसलमान आपके पुरोहित बने हुए हैं. ठीक है, टेम्पल चला रहे हैं, साफ रख रहे हैं, पहलगाम के आगे पीछे, आई गॉट नथिंग अगेंस्ट इट, साफ रख रहे हैं, सैल्यूट टू दोज मुस्लिम्स. बट वी नीड हिंदू पॉपुलेशन देयर फॉर दीज टेम्पल्स. अजीत जोशी, विवेक सेंड इट टू PMOs
great narration in detail if anything is positive. कोशिश करेंगे मिलने की, अजीत भाई मिलेंगे, मोदी जी से क्यों नहीं मिलेंगे? He is our own person, he is such popular. I will try to meet him and tell him these are ideas are pro Indian है, ये तो nothing against pro or anti anyone. And वो देखता हूँ तिब्बत के बारे में encouragement. Do you believe the current government will do something? It is already 6 years. Present government करेगी बट थोड़ा प्रेशर रखना पड़ेगा. देखो जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है ना, माँ दूध नहीं देती है. सो टेलिंग दैट बीजेपी विल डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन गलत बात है. वी हैव टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज, नॉट कश्मीरी हिंदूज, ऑल हिंदूज who can prevail upon the government in a nice way that enough is enough, something has to be done. तो आप बैठोगे, हम सब बैठे हुए जी मोदी जी करेंगे, मोदी जी हैज लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू. So, thinking somebody will do play, like, having a cricket team and telling somebody else to play. हमारे 70s में वो होता था ना, वो रामाकृष्णा, क्या नाम था उनका, वो नॉन प्लेइंग कैप्टन होता था अपना टेनिस का, रमेश कृष्णन, उसका फादर. वैसा नहीं चलेगा. वी हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड हिंदू बॉडी होनी चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड हो एंड हु कैन टॉक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट लुक, जैसे अवकाफ बोर्ड बोलता है जी हमको तनख्वाह दे दो, मिल जाती है हमको तनख्वाह. सरदार का अकाल तक तो मिल जाती है, आपके पैस्टर उनको मिल जाती है, हिंदुओं को क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड. द प्रॉब्लम विद हिंदूज इज नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है. वी हैव ए वेरी अनडिवाइडेड हिंदूज. वी नीड ए सेंट्रल बॉडी टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म, देन ओनली थिंग्स विल चेंज. अदरवाइज कुछ नहीं होगा. अदरवाइज वही रोते रहोगे जी वो आ गए, फिर जी नेहरू ने ये कर दिया, फिर जी हमको ये किया गया. वो पुरानी बात है. आगे देखने के लिए हिंदूज हैव टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल व्हिच कैन लुक आफ्टर हिंदू इंटरेस्ट. लुकिंग आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट इज नॉट बैड. इट इज नॉट अनपैट्रियोटिक. टू लुक आफ्टर योर ओन पीपल इज गुड. हर एक रिलीजन करता है, क्रिश्चियनिटी करती है, मुस्लिम करते हैं, सरदार करते हैं. व्हाई नॉट हिंदूज? ये मेंटल ब्लॉक है लोगों में कि हिंदूज ज्वाइन नहीं हो सकती. हिंदूज कैन बी यूनाइटेड. इट्स अ डिफिकल्ट जॉब बट नॉट इम्पॉसिबल. हो सकता है, हम करेंगे कोशिश, डेफिनेटली होगा. गुड पॉइंट्स. और सवाल लेते हैं कुछ. थैंक यू लेटिंग अस नो अननोन फैक्ट्स ऑफ एक्सोडस, हाउ बाला साहिब हेल्प्ड. नो जस्टिस टू ले विवेक, वी आर रिफ्यूजीज इन आवर ओन नेशन. यार किसी ने लिखा है अवंतीपुर एयरपोर्ट इज विद इन मार्ट. आई डिडंट नो अवंतीपुर में एयरपोर्ट खोलना था. दैट इज गुड न्यूज़. Avantipur can be a part of that because Avantipur temple itself is a very प्राचीन टेम्पल है हमारा. अवंतीपुर में तो पहले टूरिस्ट जब श्रीनगर से जाते हैं हनीमून वाले वहीं रुकते हैं फोटोग्राफ लेने के लिए. वो भी पार्ट है हिंदू कश्मीर का. इज गुड थिंग. व्हाट वाज कैलाश सो व्हेन वाज तिब्बत एनक्रोच्ड बाय चाइना? ये तिब्बत जो है, ये जो मानसरोवर था दैट वाज पार्ट ऑफ तिब्बत. और तिब्बत को चाइना ने 1951 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 52-53 नहीं है, 51 में चाइना ने एनेक्स्ड तिब्बत एंड एवरीबॉडी लुक द अदर वे. एंड आई थिंक इवन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड लेटर ऑन दैट तिब्बत टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना. गलती हमारी है, हम सब की गलती है. तिब्बत वाज पार्ट ऑफ, और 51 से पहले जो तिब्बत का आधा पोर्शन जो अपने टैक्स है, जो काउंसिल टैक्स और लोकल लैंड टैक्स है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को देता था. The western part of Tibet, they were still giving their taxes to government of Kashmir, and suddenly we lose a battle and give Aksai Chin to China. And अभी POK तो हम मांगते रहते हैं PO को वापस दो. We should ask Aksai Chin also back. We should not let China off the hook. Doctor, do you feel had King Hari Singh been more decided, would have been given free hand to repulse that would have been with India? Yes. अगर ये महाराजा ने अगर वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का नाटक नहीं किया होता ना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, if in August, I think July में Mountbatten had gone to him and he did not, Mountbatten went to him to tell him to join India or to help him. He did not meet him. वो ओबराय पैलेस जो होटल है वहां पे, वो पैलेस था, वहां पे गए, उसको पेट दर्द हो गया, पेट दर्द 3 दिन हुआ एंड ही डिड नॉट मीट हिम. बहानाबाजी में he did not meet Mountbatten, who had come with a plan that Indian army will look after you and decide where do you want to go. He was something funny was going on his brain that I will be independent जी, मुझे ये करेंगे.
तो ही वॉज डेफिनेटली रॉन्ग. अगर इंडियन आर्मी को जुलाई अगस्त में ला लिया होता टिल गिलगित, तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट जम्मू एंड कश्मीर. इनफैक्ट गिलगित स्काउट्स में अपने गरखास थे. गरखास वर स्टेशन देयर ड्यूरिंग द वॉर. गरखास वर लेटर ऑन केम टू इंडिया लेटर इन 1948. दे वर पार्ट ऑफ द गिलगित स्काउट्स. So Indian Army had a presence in Gilgit during the war and before the war. A small British ने एक small skeleton force वहाँ रखी थी because it was listening or a looking post toward Russia. So yes, it was. अगर हरी सिंह ने अपना दिमाग use किया होता, to be honest with you, and taken Indian Army into account, there would have been Indian Army all over the state. It would have been protected. Definitely yes. It could have changed many. Yes, it could have changed history if he had used his brain. Mountbatten को मिला नहीं. वो फेमस है, आप पढ़ सकते हो कि वो बोला जी मेरे पेट में दर्द है, ये नहीं है, वो नहीं है, मिलना नहीं चाहता हूँ, and all that नाटक. Let us meet Ramesh Avantipur. Almost 1 hour. Any further few more questions? And interesting. I hope you liked the. Sorry, in the beginning you could not hear me. I don't know why. यहाँ पे तो मैंने सब कुछ ठीक ही रखा था. तो बट आई थिंक नाउ आई होप यू पीपल एंजॉयड इट. प्रशांत मराठा इज सेइंग थैंक यू विवेक फॉर अ सेशन. या इट वाज both ways. I liked it, enjoyed it. Maybe 1 or 2 minutes more, then it will be 1 hour pula. Ramesh Kohlji, thank you, excellent, thank you sir, God bless. I know a lot of more stories, वो कभी और बोलूँगा, because I was close to a lot of people in Kashmir through my parents. My daddy was a very outspoken engineer, very good, very confident person. So he knew a lot of top officials. तो असली बात क्या होती है, इलेक्शन में दांगलेबाजी कैसे होती है, जमाती इस्लामी कैसे. So I know a lot of stories, first-hand stories, and yeah. know many stories which many Indians don't. एक और स्टोरी है, वो लिखूंगा, वो एक पिक्चर के बारे में, how was jihad started in 80s by a Hollywood movie. वो लिखूंगा, उसका पोस्ट लिखूंगा फेसबुक पे. इट इज इंटरेस्टिंग. अभी याद पड़ा मुझे. मोहन गुप्ता सर, माय सीनियर. नमस्ते सर, नमस्ते. गुरु पूर्णिमा, यू आर सच अ नाइस पर्सन मैन. हैदराबाद में यू आर लुक्ड आफ्टर us like a big brother. Ajit Joshi, another friend of mine. A lot of my friends of my बहुत पुराने, I know them 30-40 साल पुराने friends हैं. One minute more, yeah? उसके बाद I think I covered everything, history, geography in quick. I gave you all the good names, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ. And as I said, Jagmohan was very popular in his first innings. And that is why he was sent in his second innings. But वो पाकिस्तान से डिक्टेशन आ गया था कि इसकी सेकंड इनिंग्स को चलने नहीं देना है, वरना कश्मीर इंडिया के साथ वापस चला जाएगा. That was the plan of बेनज़ीर भुट्टो. If you see बेनज़ीर भुट्टोज उन दिनों के वीडियो देखोगे आप, तो वही वो जग जग मोमो हन करे, मतलब आई विल कट जगमोहन टू पीसेस. तो दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब में हैं, तो आप देख सकते हो वो चीज़ें. वो सही है. दे डिडंट वांट जगमोहन टू सेटल. आई थिंक ही वाज रिमूव्ड बाय मे. 6-7 महीने रहा था. मे में उसको ही हैड टू लीव. ही वाज कॉल्ड बैक. थैंक यू मोहन जी. ओके, बाय. थैंक यू मानुषा जी. मानुषा जी, यू आर अ वेरी गुड हिस्टोरियन, और कीप ऑन इनवाइटिंग गुड पीपल इन योर शो. इट वाज रियली प्लेजर टू बी ऑन योर in your such a great channel. Patriotic channel है, और क्या चाहिए. Thank you. Bye.